Hello everyone. Now coming to the next part of your module 2, that is your financial institution, or you can say chapter 3 of your module 2. Now, when I'm talking about your financial institutions, what are the financial institutions? Simply, a financial institution means an institution that provides the service as an intermediary for creating a financial market. Broadly speaking, these people can be divided into three types of financial institution. First of all, we can talk about your depository institution, जहाँ पे they are taking deposits. These institution, deposit taking institutions that accepts and manages the deposit and makes loans, including the banks, including your building societies, credit unions, trust companies and mortgage loan companies. तो ये आपके डिपॉजिट्स को यूटिलाइज करता है, आपके मनी को कहीं प्रॉपर वे में यूटिलाइज करवाने के लिए, लोन दिलवाने के लिए या कोई क्रेडिट्स दिलवाने के लिए. सेकेंड होता है कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्टीट्यूशन. ना कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्टीट्यूशन का मतलब द इंश्योरेंस कंपनीज एंड द पेंशन फंड, जो हमारे ही पैसे हमें फ्यूचर में देगी जिस दिन अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी. थर्ड आता है योर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन. इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस मतलब होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, underwriters and your brokerage fund is being. Now these are some of the experts. They are trending basically towards homogenization. Homogenization का मतलब होता है कि जहाँ पे वो सारे फाइनेंस को एक साथ लेकर के एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना ले, and they are meaning towards the keeping a trend towards the investment towards the area of similar business, similar kind of strategies which will create a development of the overall country. Now the kind of consequences of that might lead to this particular institution to develop, because we are having fewer banks, fewer services, specific target groups are there. These small scale producers or small scale entrepreneurs, they are not being served in a right manner. So for them to give up benefits to them, a kind of these financial institutes are giving a benefit to them. Now standard settlement instructions, एक basic financial institutions के लिए एक standard settlement instructions है that they are going to do an agreement between two financial institutions which fix the receiving agents, and even at the same time giving a counter party to the other party a ordinary trade. एक से पैसा ले रहा है, दूसरे को पैसा दे रहा है, and they are going to limit the institution of the financial. They are going to keep a cross accuracy towards the payment and towards the giving a borrowing of the money. So ये क्या होता है कि financial institution they are running even as by a company. They are engaged in the business of dealing with the money. एक को पैसा दे रहा है, दूसरे से पैसा ले रहा है, डेब्ट्स ले रहा है, लोन्स ले रहा है, डिपॉजिट्स ले रहा है, इन्वेस्टमेंट, करेंसीज, all these are the financial institutions. They basically, because the financial operates a critical part, financial thing, stability is a very much critical part in the development of the economy, in the overall economy, and because this is called to be the very much essential part of the country's citizenship or the country's citizenization of your dependency of the financial institution for the transaction of the saving amount and the investment amount. तो वो proper way में govern करने के लिए, उसको proper regulate करने के लिए, proper way में channelize करने के लिए, they are functioning towards bringing the money from the public, investing into the business and then channelizing it in a right manner. So ये financial institution का काम basically ये रहता है. Now further, when I am talking about your types of financial institutions, so there are financial institutions in a very much wide range, जहाँ पे they are providing different products and services for individual and the commercial clients also. Individual मतलब मेरे और आपके जैसे individual लोग, commercial clients मतलब जो big institutes, big companies, big organizations होती है उनके लिए. तो specific services they are being offered which vary widely, मतलब depending upon the clients to clients, depending upon customers to customers, they are providing these different services. सबसे पहले the few of the financial services which are majorly categorized into a financial institution and their roles in the financial system is your commercial banks.
So basically they are going to act as a commercial banks which they are accepting the deposit, providing security and conveniences to their customers. So each time मेरे को डिपॉजिट आ रहा है, मेरा पैसा सेव हो रहा है, मेरे पैसे पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मनी मेरा आगे कहाँ पे जा रहा है, बी कीपिंग द फिजिकल कैश ऑल्सो एट टाइम्स. अगर मुझे कभी लोन की ज़रूरत होगी, कभी मुझे अमाउंट की ज़रूरत होगी, इवन नाउ तो वी आर इजीली गेटिंग द फैसिलिटी टुवर्ड्स द वॉलेट्स ऑल्सो. आप पेटीएम देख लो, गूगल पे देख लो, अमेजोन का पेमेंट देख लो. तो ये सब क्या होता है कि मेरे मनी को चैनलाइज करना टुवर्ड्स माई वॉलेट ऑल्सो. हु आर ऑल डूइंग दिस? दिस इज योर कॉमर्शियल बैंक. तो कॉमर्शियल बैंक जो पहला था कि मैकेनिक रोल था कि आपको चेक देता है, चेक डिपॉजिट करता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है, बस वही नहीं है. बट इवन दे आर टर्निंग आउट टू बी लीडिंग फॉर डिपॉजिटरी बैंक्स. वहाँ पे funds are being circulated at a very much higher scale, and they are actually being a institution where they are essentially keeping a check on all the different kind of negotiable instruments also, and giving a kind of creating a merchandise business where all the debts, credits, debit cards and all these different types of services are benefiting towards the customers. नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट बैंक्स. अभी इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होते हैं? जहाँ पे आई कैन से द स्टॉक मार्केट और वेयर द इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द बैंक्स. देयर ऑपरेशन इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द डिपॉजिट गैदरिंग कॉमर्शियल बैंक. द कॉमर्शियल बैंक का क्या होता है? बेसिकली उनका बिजनेस वही चेक्स, वही क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स के डीलिंग में होता है. जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करती हूँ, एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी. नाउ दे आर बेसिकली एंड दे आर concentrated towards the deposit gathering from the commercial bank. So at times क्या होता है कि ये जो आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, ये कॉमर्शियल बैंक से जाते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा ले करके बाहर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो इवन दैट फॉर दैट रीजन दे कैन कॉल टू बी एज अ इन्वेस्टमेंट बैंक. फॉर दैट दे हैव टू इंक्लूड अ काइंड ऑफ अंडरराइटिंग. दे आर रिक्वायर्ड टू गिव देम some sort of offering. They are required to give them some kind of facilities. Then only you can, otherwise हम कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई नहीं करने वाला है. नेक्स्ट इज योर इंश्योरेंस कंपनीज. अभी इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली हमको क्या देती है? हु इज गोइंग टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ security towards the risk which is happening in a longer period of time. So they are basically risk pooling, collecting premiums and from a large group of people, and then they are securing them. आज की तारीख पे प्रीमियम का पैसा मुझे नहीं मिलेगा, बट किसी दिन अगर गॉड फॉरबिडन मुझे कुछ हो गया, उस दिन मुझे वो पैसा मिल जाएगा. तो दैट इज योर इंश्योरेंस कंपनीज. इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली यही करती है कि जो प्रीमियम का पैसा आता है वो पैसे को वही वे में आगे जा करके रिस्क फंड्स एंड ऑल में, इंश्योरेंस स्कीम में, कंपनीज के पास मैनेजमेंट में वो डिपॉजिट करती है, एंड देन पीपल आर यूटिलाइजिंग दैट मनी. So even when I'm talking about, they are also known as individually, when we all are insured in the, where in future the suffering of the losses at the same time, these people, these insurance companies, they make you as a kind of a security for a longer period of time कि हाँ अगर आपको कुछ हो जाएगा, we are over here to protect you from some sort of losses. नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट कंपनीज. इंश्योरेंस कंपनीज के बाद हमारे इन्वेस्टमेंट कंपनीज आती है. अभी इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होता है? योर बेसिकली दीज आर द कंपनी और द कॉर्पोरेशन, दे आर creating a trust in from the individual investors and they are diversified. Even इनका काम भी वही है, प्रोफेशनल मैनेज करना, पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज मेंशन करना, जो हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं या SIP की बात करते हैं और भी मैनी अदर फंड्स की बात करते हैं. तो ये क्या होता है? ये आती है, आपको डिफरेंट पॉलिसीज बताती है, आपको डिफरेंट, अभी इसमें आपको टाटा AIG का मिल जाएगा, फिर आपको म्यूचुअल फंड का, फिर मोतीलाल ओसवाल का मिल जाएगा. ऐसे बहुत सारे हैं जो आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज मिलेंगे. दैट मीन्स टू से योर 1 rupee कैन बी डाइवर्सिफाइड इन अ लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज. दैट इज द ड्यूटी ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट कंपनीज. वो आपके ही पैसे को स्पेसिफिक, बेसिकली मुझे किस टाइप का ऑब्जेक्टिव है, मेरा लॉन्ग टर्म है, मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मेरा आउटकम कितना होना चाहिए, 50%, 100%, या मुझे कंप्लीट चाहिए, तो मुझे किस टाइप की सिक्योरिटी चाहिए, उस टाइप का वो लोग मुझे इन्वेस्टमेंट करके देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन टॉक यू अबाउट योर यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. सो ये क्या करती है? दिस इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी जो आपके एस्टैब्लिश अंडर द एडवेंचर. दे आर मैनेजिंग द ट्रस्ट, सुपरविजन एंड ट्रस्टी. इवन द फेस अमाउंट सर्टिफिकेट्स,
सो ये क्या है, ये सब पोर्टफोलियोज है, दे आर द सिक्योरिटीज, दे आर सुपरवाइज्ड अंडर द अथॉरिटीज एंड दे आर मैनेज so that the people are investing in the companies for a longer period of time. Now coming ahead to the next of your non-bank financial institution. Now we do have a following, जहाँ पर the following institution are not technically being banks, but they are provide some kind of services as of equivalent to a bank only. So that's why they are called to be as a non-bank financial institution. अभी इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट सर्विसेज दे प्रोवाइड, दे गिव यू प्रॉपर सेविंग्स एंड लोन्स, दे गिव यू क्रेडिट यूनियंस, दे क्रिएट अ काइंड ऑफ अ क्रेडिट फॉर यू इन द मार्केट, दे काइंड ऑफ क्रिएट अ डेप्ट वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है. दीज आर द कॉमर्शियल, दे एक्ट एज अ कॉमर्शियल बैंक्स एंड दे डेवलप द कंट्री इन अ वे. उनका रोल क्या करना है, मोबिलाइज सेविंग ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन. अगेन उनका भी वही है कि वो लोग अदर वे डाउन में बैंक की तरह ही काम करते हैं, बट वो मोबिलाइज करते हैं, कैपिटल फंड को मोबिलाइज करते हैं. देन एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉन मोनेटाइज सेक्टर, तो जहाँ पे फाइनेंस का आउटफ्लो इनफ्लो इतना नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे भी देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, उनके थ्रू मनी को सेग्रीगेट करना, उसके थ्रू मनी को मोबिलाइज करवाना, चैनलाइज करवाना एंड उसको रीयूटिलाइज करना, ये फंड्स ये लोग नॉन बैंक वाले काम करते हैं. Even financial industrial sector, financial industry, they help in the monetary policies and others also. So at times क्या होता है, जैसे आज we have become कि जहाँ पे है ना डिमोनेटाइजेशन के बाद आप लोगों को अभी कंपलसरी हमको बैंक का अकाउंट ओपन करना है, आधार से लिंक करना है, अदर आपको KYC देना पड़ेगा. ऑल दीज आर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, बट अदरवाइज पहले भी और अभी भी कुछ लोग पॉपुलेशन है जहाँ पे दे आर नॉट नोइंग अबाउट इट. सो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनका उनके फाइनेंस एंड इनकम को कैसे चैनलाइज किया गया, this is all done by these non-banking sectors. Now some of the few of the other financial institutions में अभी हमारे one by one we are going to discuss. सबसे पहले आता है IFCI, that is your Industrial Financial Corporation of India. Now basically ये it was been owned earlier by the Indian government. Now later on it was been developed like a bank to cater a long term finance, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर फाइनेंस की ज़रूरत होती थी तो ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्क करता था. एंड दे वर वर्किंग अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द गवर्नमेंट ओनली. देयर मेन मोटो, देयर मेन फंक्शन was to create a capital market, to collect the capital from the public and to utilize. जब 1947 में ये एक्चुअली इनिशियली इंडिपेंडेंस के बाद ये स्टार्ट हुआ था, बिकॉज वी वांटेड टू स्टार्ट विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो लेटर ऑन जब 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी सब चेंज हुई, डेवलप हुई, उस टाइम पे ये पर्टिकुलर IFSCI को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिला. एंड बिकॉज दे वर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस, दे वर क्रिएटिंग अ स्टार्टअप द इंडस्ट्री, दे वर डेवलपिंग अ मार्केट फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में रिकॉग्नाइजेशन to even they allowed the new marketers to enter the market, to take over the monopoly of the existing industrialist, to pay for the day to day running industry. मतलब क्या होता था कि वहाँ पे उस टाइम पे लोगों के पास पैसा नहीं होता था, इंडस्ट्री स्टार्टअप हो गई है बट उनको सैलरी वेजेस देने के लिए पैसा नहीं है, तो उस टाइम पे इनको फाइनेंशियल हेल्प कौन दिया, IFCI ने दिया. तो वो लोगों ने द very much high scale पे industrial where they started creating a short term, medium term, large scale, long term industries who had actually started developing themselves. They started issuing shares, debentures, they started creating a profits in this particular criteria, and the industrial sector started getting a boom. And that was the period in 2000 जब ये IFCI had developed a very much high market. उसके बाद हमारा आता है IDBI का फुल फॉर्म, दैट इज योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. नाउ एज द टर्म सेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अभी हम लोगों का स्टेबलाइजेशन तो हो गया, बट इंडियन गवर्नमेंट दे ओन द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी फॉर्मली, एंड दिस वाज फॉर्मली नोन टू बी एज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. नाउ दे वर अगेन हैविंग द हेडक्वार्टर इन मुंबई.
their main development, the main criteria for this was also the government ने ये particular IDBI क्यों चालू किया था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पीपल लोगों को लोन प्रोवाइड करना, उनको बेनिफिट देना. नाउ दिस वाज इन द ईयर 1964 जहाँ पे दे स्टार्टेड क्रिएटिंग कि अगर आपके पास पैसा है आप आओ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से पैसा लो, जाओ एट अ वेरी मच डाइवर्सिफाइड मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, फॉरेन करेंसीज को यूटिलाइज करो, ग्रीन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर को इम्प्रोवाइज करो. तो देयर मशीनरी वॉज जस्ट टू फंक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोर एंड मोर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को. So that's why it was been called to be as a Industrial Development Bank of India.